control process, right? So in this chapter we are going to see the design part of that award control uh, award control business process, right? So in this chapter it has included both the examples, the timesheet submission process and this award control business process as well, right? Using REST services. So let's start. So, so we have in the chapter number 12 we have seen after analyzing the after service oriented analysis phase, we have done our analysis design, right? Means design, service oriented design. So in the design part, what we have done in the previous chapters, we have come up with means contract designing, right? In the previous chapter we have seen the contract designing. So the contract designing what we have done in previous chapter, that was completely based on contract designing for the web services contract design, right? Contract design. But in this chapter we are going to see contract design, but it is going to be based on rest based web service contract design, right? So what is the meaning of contract design over here? So contract designing means designing the endpoint, designing the endpoint. So designing the endpoint. So some of you may ask that sir, the designing of the endpoint ये तो पिछले वाले चैप्टर में हो गया है, तो व्हाट्स न्यू इन दिस चैप्टर? तो यहाँ पे क्या होने वाला है? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी इन दिस सी some MUA architects, because this is the MUA project. So some MUA architects is going to use their experiences, and they are going to use the three layered architecture uh, which we got in the previous chapter as an output. This is going to be going for service oriented design part, right? This will be acting as an input for service oriented design. And now we are going to enhance the endpoint URL, right? So let's start. What is the meaning of rest service contracts? So we have known the designing of the contract approach. Designing of the contract means designing the endpoint URL, right? So let's see some benefits of with REST services. Why we are designing with REST services? So there are some listed benefits over here. So the first one is REST services contracts can be designed to logically group capabilities related to the functional context established during the service-oriented analysis process. So in the previous chapter, we have seen, depending on the functional context. What is the meaning of functional context here? We have seen, suppose some operations in the previous analysis phase, some of the steps which is associated with some entity means business entity like customer, a student. These are some entities. Some steps may be associated with these steps. So what we have done, we simply associate those steps in a single logical unit, right? That is known as functional context, right? Again, the second benefit of using the REST service, conventions can be applied to formally standardize resource name and input data representation. So while discussing about the REST API designing, we have already seen the meaning of resources and the methods, right? And the input data representation can be of different types like JSON, or you can use XML, or simple text data. So different data representations are supported by REST services. Now the third point is complex method can be defined and standardized to encapsulate a set of predefined interactions between the service and the service consumer. What is the meaning of this point? Let's see. Suppose till this point you must have encountered the concepts of HTTP verb, right, everyone?
So in context of HTTP verbs, let's say this is a student, and a student entity service, and it has, let's say, 4 operations: operation 1, operation 2, operation 3, and operation 4. So you may have encountered the different HTTP verbs like get, put, delete, or you can have a post, right? So these are can be seen as a simple HTTP method, right? So some of the operations are simple in nature. They can be associated with a single, you can say, single HTTP verb, right? But some of the operation may be complex in nature, So the designing of those kind of complex methods can be done using different techniques, right? So means जिसमें ये इसके अलावा जो हमारे पास जो सिंपल मेथड्स के अलावा जो हमारे पास होने वाला है वो कॉम्प्लेक्स मेथड होने वाला है, जो सिंपल एचटीटीपी वर्ब से रियलाइज ना हो सके, ठीक है? सो हम लोग देखेंगे वो भी कुछ कॉम्प्लेक्स मेथड है आगे एग्जांपल में, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? द नेक्स्ट पॉइंट, service consumers are required to confirm the expression of the service contract. So if you are two services are wants to communicate with each other, right? So the service consumer and the service provider needs to agree upon certain expression, like what are the schemas you need to let's say consumer wants in let's say schemas like this one. Consumer wants its data in this form. First name should be here, last name should be here, and address should be here, right? So this is the schema. This schema, both the consumer and the service provider must agree on this schema, so that they can communicate, or they can transfer data within this schema structure, means which conforming this schema structure, right? And the last point is the design of business centric resources and complex. It also talking about the complex method. We will going to see in the next upcoming slides. The design of the business centric resources and the complex methods can be assisted by business analysts, who may help to establish an accurate expression and behavior of business logic. We will see this point later on. So so there are two sections. You can see the very first section is designing the endpoint, right? Or in this service oriented context, designing the endpoint means contract designing. Both are same things. ये इस सब्जेक्ट में एक ही चीज का बहुत ज्यादा तुम लोग को टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगा, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से इसको बोला गया होगा. अगर इफ यू आर फॉलोइंग सर्टेन लेट्स से you are following this service oriented architecture from any another textbook, or following any research papers, they may be referring to the same thing using different terminologies, right? So there are different terminologies for the same thing, and different authors are writing same thing using मतलब अलग अलग टर्मिनोलॉजी से एक ही चीज को बात कहने की कोशिश किया जाता है. तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एंड पॉइंट हम लोग देखे हैं लैब सेशन में, that is nothing but the contract designing. So after the designing the contract, designing the end point, the next step is physical design. What is the meaning of physical design? Writing the code for the API endpoint. Getting my point? Suppose you have endpoint like get www.example.com/employees. So it is an endpoint. So let's say this endpoint URL is stating that it wants some consumer wants details of all the employees. Getting my point, everyone? Yes, sir. तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिजाइनिंग, ये यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिजाइनिंग तो हो गया कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया. तो द सेकेंड स्टेप will be
फिजिकल डिजाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल डिजाइन? इसका कोड होगा तो ना कुछ होगा इसमें, इसका जो कोड होगा, जो जो इसको इंप्लीमेंट करेगा यूजिंग सम पर्टिकुलर एपीआई, तो जावा एपीआई जो हमारे पास है, या इफ यू आर यूजिंग ओरेकल सुआसूट, तो हम लोगों ने इसका एक रियलाइजेशन करके देख चुका है, देख रखा है, जो हम लोगों ने शायद एडिशन वाला किया था रेस्ट सर्विस के थ्रू। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिजिकल डिजाइन में बदलना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे हम लोग लिखा है फिजिकल डिजाइन में। ठीक है, तो द you can see over here, the physical design of the REST service contract APIs may reveal functional requirements that are more suitable for alternative implementation mediums. So if you are trying to implement certain contract APIs, means contract endpoints, then you will get to know what are the specific functional requirements. Suppose you are designing an API, let's say in this example, if you are considering this endpoint URL, अगर तुम इसको कोड करने जाओगे तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या होने वाला है, कोई बता सकता है? रिक्वायरमेंट होने वाला है वी नीड टू यूज एम्प्लॉयज डेटाबेस, राइट? Yes, sir. then only you can get the details of all the employees. So in the फिजिकल डिजाइनिंग में, फिजिकल डिजाइन का मतलब क्या हो गया, इसका कोड होगा, इसमें इसका कोड होगा। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट लैब में देखेंगे, जो सैटरडे को होने वाला है, इसको हम लोग इसमें भी देख लेंगे। तो इसमें इसका क्या होगा, पर्टिकुलर कोड होगा, एंड अगर तुम इसका कोड लिख रहे हो तो उस कोड में पक्का एक सेलेक्ट क्यूरी होना ही चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. अगर एक सेलेक्ट क्यूरी होगा तो सेलेक्ट क्यूरी कोई कंपाइलर पे रन तो नहीं करता है ना, वो डेटाबेस सर्वर पे ही रन करने वाला है। ठीक है, तो डेटाबेस सर्वर पे रन करने का यानी एक डेटाबेस हमारा रिक्वायरमेंट है। सो वाइल इसका मतलब क्या हुआ, वाइल राइटिंग द फिजिकल डिजाइन यू विल बी एबल टू रिवील द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, ये कुछ नोट दे रखा है इस बुक के अंदर, ये एक दूसरे बुक को रेफर कर रहा है। ठीक है, जहाँ एक बुक का नाम है सोआ पैटर्न्स, ये एक सोआ पैटर्न्स बुक है बाय थॉमस अर्ल। सो इन दैट बुक दे आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट पैटर्न्स, मीन्स बेस्ट प्रैक्टिसेस followed by different software engineers in the companies, right? So there are different sets of you can say पैटर्न्स, राइट? तो पैटर्न यूज करने से लाइफ आसान हो जाता है। तो देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ पैटर्न्स इन दिस बुक, दे आर रेफरिंग द पैटर्न्स फॉर, you can see over here the dual protocols and you can see over here this dual protocol and this concurrent contract. So these are some service facade. So these are some SOA patterns which is widely used in the industries. So what it says, you can check on the internet or you can go through this book, but ये सर्विस फसाड क्या कहता है कि सपोज यू हैव रिटन अ सम लॉजिक, suppose you have written some logic, let's say I have written a web service calculator web service right, and I am exposing all of the operation, let's say addition, subtraction, multiplication and division using SOAP, right? ये करके देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, Yes, sir. तो इसमें सर्विस फसाड में क्या कहते हैं कि जब अगर तुम जाओगे ना, ये मान लो ये बीपीएल है, ओरेकल सुआसूट में अगर जाओगे ये बीपीएल है, तो इस पर राइट क्लिक करोगे ना, इस पॉइंट पे अगर राइट क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सपोज एज रेस्ट सर्विस, एक्सपोज एज रेस्ट सर्विस। तो क्या होने वाला है कि दिस सेम सर्विस विल बी एक्सपोज्ड एज रेस्ट सर्विस एज वेल। तो मान लो कोई कंपनी में तुम जॉब कर रहे हो
और वो तुम्हें प्रोजेक्ट देता है, मतलब तुम एक सर्विस बना रहे हो तो तुम सोप में बनाओगे, फिर से उसका रेस्ट में तुम कोड नहीं करोगे ना। गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग क्या करेंगे, एक ही सर्विस को एज अ सोप वेब सर्विस एक्सपोज कर देंगे, एज अ रेस्ट सर्विस भी एक्सपोज कर सकते हैं। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। नहीं तो, क्योंकि सब कंपनी का अलग रिक्वायरमेंट होता है। मान लो ये क्रिक बज का वेब सर्विस है, क्रिक बज का, तो जो क्रिक बज का एपीआई को यूज करना चाह रहा होगा, दे दे ये पॉसिबल है कि दे वांटिंग दिस क्रिकबज एज अ सोप सर्विस, और some of the subscriber of this क्रिकबज सर्विस मे वांटिंग दिस रेस्ट सर्विस, राइट? तो हर वेब सर्विस के लिए हमें दो दो सर्विस बनाना पड़ेगा, सेम सर्विस के लिए हमें दो दो सर्विस बनाना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम समझ रहे हो? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ओरेकल सुआ सूट में फीचर होता है क्या, इस पर राइट क्लिक करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन दिखेगा, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन होता है, ठीक है, एक्सपोज एज अ रेस्ट सर्विस। जो जैसे उस पर क्लिक करोगे तो एक और यहाँ पे एक सिंबल बना जाएगा, जो यहाँ पे दे देखते हो रेस्ट, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक सिंबल होता है, किधर होता है, तो ये सोप सर्विस होगा, ये रेस्ट सर्विस की तरह एक्सपोज हो जाएगा। यानी सेम सर्विस, यू कैन यूज दिस सेम सर्विस एज अ सोप एज वेल एज रेस्ट सर्विस। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ service facade. You can see over here. The patterns can be further applied to enable same body of service logic to expose alternate service contracts in support of two standard communication protocols. अब देखो उसी सेम सिंपल चीज को कितना कॉम्प्लेक्स वे में लिखा गया है। Patterns can be further applied to enable same body of service logic to expose alternative service contracts in support to different communication protocols. अगर इसको सिंपल वे में पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोल दिया। सो एक या डुअल प्रोटोकॉल में भी ऐसा ही कुछ है। और नाउ वी आर गोइंग टू सी द रेस्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर आवर एंटिटी सर्विस, टास्क सर्विस, यूटिलिटी सर्विस and micro services. So in the starting of this chapter, I have already told you, in this chapter we are going to consider that timesheet submission process and that award control process as well for the REST service contract API designing. So let's see what is the meaning of entity service design over here. So one thing, in the last chapter, in the second last chapter, I have already told you, while designing the contract for each category of the services, we need a different approach. Suppose what I'm suppose you are designing a contract for entity service. This is an entity service, this is an utility service, or this is a task service, or let's say this is microservice. So the approach to design contract for this entity service will be different than this utility service, than this task service and this microservice. Getting my point? Every category of these services had different approach for contract designing, right? Getting my point? Yes sir. So ये बुक में क्या किया गया है, पहले थोड़ा सा एंटिटी सर्विस डिजाइन के बारे में बताया गया है, and then we will move on to that our example. So let's see, we have already seen the definitions of this entity service design. So entity service हम लोग जानते हैं कि when we are designing entity service, we are designing entity service for certain entities, right? और what is the meaning of entities over here? जो हमारे डेटाबेसेस में टेबल होता है ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एंटिटी सर्विस बनाते हैं। सपोज यू हैव इनवॉइस सर्विस, क्लेम इनवॉइस टेबल, क्लेम टेबल, कस्टमर टेबल, स्टूडेंट टेबल, दीज आर दी सम टेबल्स अवेलेबल इन योर डेटाबेसेस. So for each of these tables you must have an entity service. Getting my point? So suppose you have a student table in your database, and it has some attributes like ID, name, roll number, and address,
and registration number or whatever the attributes it has, right? So suppose corresponding to this student table, we have a student entity service. A student entity service. So what kind of operation this student service will have? Anyone? रजिस्ट्रेशन। तो जो भी देखो रजिस्ट्रेशन मतलब जो भी तुम ऑपरेशन इस सिंगल टेबल पे कर सकते हो ना, जो भी एसक्यूएल क्यूरी तुम इस सिंगल टेबल पे लगा सकते हो ना, वो यहां पर ऑपरेशन हो सकता है। सपोज आई वांट कि तुम ये बताओ कि रजिस्ट्रेशन डेट है, ये मान लो रजिस्ट्रेशन डेट, तो हम ये जानना चाहते हैं कि 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में किसका किसका एडमिशन हुआ है। तो ये जो एसक्यूएल क्यूरी होगा इसी टेबल पे चलेगा ना, ये सिंगल टेबल पे चलेगा। यस सर। So that operation can be reside in this student entity service. Getting my point, everyone? Yes, sir. So whatever the different SQL queries you can perform on this single table, ठीक है। अब कुछ भी नहीं डाल देना है, जो हमारे बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड होगा वही डालना है, लेकिन हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम कितना डाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई सिचुएशन हो कि तुम इसमें स्टूडेंट एंटिटी सर्विस में कितना ऑपरेशन डाल सकते हो, तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा, जितना भी तुम एसक्यूएल क्यूरी परफॉर्म कर सकते हो इन दिस सिंगल टेबल, ऑन दिस सिंगल टेबल, हम लोग इसको यहां पर रख सकते हैं, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी सर्विस। सो ईच ऑफ द एंटिटीज ऑफ द एंटिटी मींस टेबल, so each of the table present in the database will be associated with a single entity service. Getting my point, everyone? Yes, sir. This is how we design entities. ये तो शुरुआत से ही बोलते आ रहे हैं, ये इसमें कुछ नया नहीं बताया मैंने फिर से, ये पहले भी बोला हुआ था कि जो टेबल होता है वो एक सर्विस के तौर पे क्या कर सकते हो, उसको एक्सपोज कर सकते हो। ओके, सो तो इसीलिए हमारे पास उस टेबल पे तुम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, आइदर यू कैन परफॉर्म क्रिएट, अपडेट, डिलीट और क्या कर सकते हैं, इंसर्ट, राइट। दीज आर द 4 ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन अ सिंगल टेबल। एवरीवन? यस सर। यस सर। तो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे सर्विस में क्या होगा, उसका यूआरएल होगा, एंड पॉइंट यूआरएल, वो हम लोग जानते हैं कैसे लिखना है, ठीक है। यही ना ऑपरेशन तुम परफॉर्म कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते हैं। ओके, so get, put, delete methods can be used over here. Entity services may need to support updating their state consistently with changes to other entity services. So it may be possible, अगर मान लो तुम एक वर्कफ्लो का वो जो टेबल है, सपोज that table, that student table, if it is an part of an workflow, what is the meaning of this part of an workflow? Let me show. Suppose part of workflow का मतलब क्या हुआ कि मान लो एक ऑर्डर टेबल है, एक यूजर आईडी टेबल है, या दिस इज एन यूजर टेबल। सो suppose I want to delete a particular record from this table. Deleting a record from this table, user table, means क्या हो गया कि यूजर का डिटेल्स डिलीट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये तो सिंगल टेबल पे हुआ ना, एक सिंगल टेबल पे हुआ। यस सर। लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसके रिलेटेड जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया गया होगा, मींस ऑर्डर टेबल में जो भी इसका जो ऑर्डर रहा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। पेमेंट सेक्शन में जो भी इसका सेक्शन रहा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा, जो हम लोग कॉन्कैटिनेट डिलीट पढ़ते नहीं है वो लोग, ठीक है। यस सर, ये फॉरेन की टाइप का कांसेप्ट हुआ ना। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टेबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वो एंटिटी सर्विस में सिर्फ यही होने वाला है, इसका इफेक्ट दूसरे पर भी पड़ सकता है इफ इट इज कनेक्टेड विद दिस टेबल्स, राइट। अगर मान लो फेसबुक अकाउंट हम डिलीट कर रहे हैं तो मेरा मैसेज भी डिलीट होगा ना, तो मैसेज टेबल में से वो भी गायब हो जाएगा।
ठीक है. So yeah, so that is what it is saying. Entity service entity services may need to support updating their state consistently. उनको consistent रखना है. पता लगा कोई यूजर नहीं है, उसका मैसेज है, तो डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ना. तो to maintain their state inconsistent with changes to their other entity services, right? Entity service may also often include query capabilities for finding entities. ये हम लोग ने देख चुके हैं, ठीक है. And it may be possible that a single entity means it may be possible that the entity service may consist of complex method. What is the meaning of complex method? We have already seen. हम लोग देखेंगे इसका एग्जांपल. लेकिन कॉम्प्लेक्स मेथड वो होता है जो सिंपल स्टैंडर्ड एचटीटीपी मेथड के थ्रू नहीं किया जा सकता है. दैट मीन्स you cannot perform the complex method using that standard HTTP method based capabilities. Means either using get, delete, put, post. इसको सिर्फ यूज करके हम लोग कॉम्प्लेक्स मेथड को यूज नहीं कर सकते. सिंपल मेथड को यूज कर सकते हैं बिकॉज सिंपल मेथड्स आर बेस्ड ऑन सिंगल टेबल. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? बट इन कॉम्प्लेक्स मेथड वो ज्वाइन वाला कंसेप्ट आ जाएगा, दो तीन टेबल से जुड़ा हुआ रहेगा. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. तो जब सिंगल टेबल पे कर रहे हो तो गेट से काम चल जाएगा, डिलीट से काम चल जाएगा, पोस्ट से काम चल जाएगा, इससे भी चलेगा, इसी से चलेगा. ऐसा तो नहीं है कि इससे अलावा कुछ आने वाला है. लेकिन कॉम्प्लेक्स मेथड का क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट एपीआई डिजाइनिंग दूसरे वे से होगा. ठीक है, मतलब इसका कहने का ये नहीं है मतलब कि इससे नहीं होगा, इसी से होगा, लेकिन the approach will be different for this complex method API designing. So we will see later on. So now coming to this point, yeah, you can see over the example. Get invoice ID. So invoice is what is the meaning? Invoice is an entity service, right? Yes, sir. So हम लोगों ने ये सिंपल मेथड है. गेट इज अ सिंपल मेथड, पुट इज अ सिंपल मेथड, इनवॉइस वी आर यूजिंग इनवॉइस आईडी एंड कस्टमर. दीज आर दी एंड पॉइंट यूआरएल. एक मिनट लो, इसको देखो बढ़िया से पहले. देखो थोड़ा सा किस तरह से लिखा गया. फर्स्ट विल बी द गेट एंड देन आफ्टर स्लैश वी आर यूजिंग इनवॉइस बिकॉज द नेम ऑफ द एंटिटी सर्विस इज इनवॉइस ओवर हियर, and then we are passing out the invoice ID, right? The second operation is put. ये कहां से आया है? ये उस चैप्टर से आया, 11th नंबर चैप्टर, इनवॉइस टाइम शीट सबमिशन प्रोसेस में था. याद है ना सबको? Yes, sir. हाँ, टाइम शीट सबमिशन प्रोसेस में इनवॉइस था, स्टूडेंट था, सॉरी क्या था, आगे आएगा. ठीक है, तो ये सब जो हमारे पास ये सब पिछले चैप्टर का है, मतलब सेकेंड लास्ट चैप्टर का है. तो गेट इनवॉइस, पुट इनवॉइस, एंड पुट इनवॉइस में तुम लोग देख सकते हो, आफ्टर राइटिंग द पुट देन इनवॉइस, देन आफ्टर स्लैश वी आर एक्सपेक्टिंग इनवॉइस आईडी इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम द यूजर, एंड देन वी आर राइटिंग द कस्टमर, राइट. देन द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आर, कॉम्प्लेक्स मेथड्स आर फेच. यू कैन सी ओवर हियर फेच एंड स्टोर. देख रहे हो ना, ये गेट और पुट से नहीं, मतलब किया तो उसी से जाएगा, लेकिन यहां पर क्या है, फेच एंड स्टोर है. ठीक है? Yes, sir. ओके. सो इसका भी मतलब यही होगा, क्रड ही ऑपरेशन होगा, लेकिन ये दूसरा एचटीटीपी वर्ब टाइप का यूज हो रहा है. ठीक है, सो द ऑल थिंग्स आर रिटन ओवर हियर, यू कैन सी ओवर हियर. इसी में ये यूज किया गया है, मतलब जो भी कहानी है इसी में लिखा गया है. ओके ओके. हम लोगों ने किसका डिजाइनिंग देख लिया, एपीआई डिजाइनिंग किसका देख लिया है, एंटिटी सर्विस डिजाइन का. और कहां देखा ये, कि हम लोग क्या देखा, इसका कंक्लूजन क्या आता है कि some of the operation in entity services may be realized using the simple HTTP verb methods, right? And some of these services may be in complex in nature, so we will discuss the concepts of designing this complex method in later on. So now coming to the utility service design. So the similarity between the utility service and the entity services, both are agnostic in nature and reusable in nature.
So what is the difference between agnostic and reusability? दोनों तो सेम ही लगता है. ओके. हाँ सर, आपने भी तो सेम ही बताया था कि एग्नोस्टिक मतलब रीयूजेबल ही हुआ. मैंने भी सेम ही बताया था. मैंने रीयूजेबिलिटी पे लगभग 10 मिनट का कहानी सुनाया था कि इस यहाँ पे रखा हुआ है 17% यूज होता है तो वो दूसरे पार्ट में यूज हो सकता है. लंबा चौड़ा कहानी सुनाया था. ओके, सो we are not going to see the differences between the agnostic and reusability here. So the entity service and utility services are both agnostic and reusable in nature, and the major differences between utility service and entity service. Major difference between the utility service and entity service. सो यूटिलिटी सर्विस में और एंटिटी सर्विस में डिफरेंस ये है कि इसका फंक्शनल बाउंड्री वो फिक्स्ड होता है और इसका फंक्शनल बाउंड्री क्या होगा? होता ही नहीं. नो फंक्शनल बाउंड्री. सो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. सपोज in the last example we have already seen what is the meaning of entity services. In case of entity services sorry, so in case of entity services all the operations must be associated with a single table, right? अरे जस्ट अभी पता है ना, स्टूडेंट एंटिटी सर्विसेज इसका मतलब क्या होगा? So it must be associated with the student table in the database. So whatever the operations you can perform on this student table, those operations can reside in this student service, right? Everyone? Yes sir. Okay. So इसमें फंक्शनल बाउंड्री क्या है? फंक्शनल बाउंड्री ये है कि इस टेबल पे ही जो ऑपरेशन होगा ना, that can reside into this table, that can reside into this what is this? Entity service. ये हमारा फंक्शनल बाउंड्री है. ठीक है. नॉन फंक्शनल बाउंड्री का मतलब क्या हो गया कि सपोज यू हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ टेबल्स. दीज आर दी टेबल्स, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 एंड टेबल 4, एंड यू आर ट्राइंग टू मैनेज दिस टेबल्स. ठीक है. हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स ज्वाइन का ऑपरेशन हो. इस टेबल से मैनेजर का सैलरी निकालो, मतलब ऐसा कुछ जो ज्वाइन वाला नहीं होता है जिसमें लाइक क्यूरी लाइक select employees from finance department, get details of employees from finance department whose salary is greater than 1 lakh, right? तो इसमें डिपार्टमेंट को और एम्प्लॉय टेबल को जोड़ना पड़ेगा ना. Yes sir. तो यस सर. इस केसेस इसको हम लोग एंटिटी सर्विस में भी डाल सकते हैं, लेकिन एंटिटी सर्विस में हमारे पास स्कोप क्या है? फंक्शनल, ये तो बाउंड्री हो गया, लेकिन स्कोप क्या है कि यू कैन यूज ओनली सिंगल टेबल. इसमें क्या है कि यू कैन यूज मल्टीपल टेबल्स. यूटिलिटी सर्विस में क्या होगा? यू कैन यूज मल्टीपल टेबल्स. ठीक है, मल्टीपल टेबल्स. और इसको क्या करते हैं? यूटिलिटी सर्विस को यू कैन यूज फॉर मेंटेनेंस पर्पस एज वेल. मान लो ये टेबल चल रहा है, 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 चारों टेबल चल रहा है, और इनके बेस पे तुम्हें कुछ डिसीजन लेना है. देन दोज काइंड ऑफ सर्विसेज आर अंडर यूटिलिटी सर्विसेज. इनका कोई फंक्शनल बाउंड्री नहीं है. जैसे मान लो एक टेस्ट होने वाला है, मान लो एमएल का टेस्ट होने वाला है, तो एमएल के टेस्ट में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो वही पूछा जाएगा जो टीचर ने पढ़ा चुका है. ठीक है. तो एवरीवन, तो इसमें बाउंड्री फिक्स क्या है? स्कोप फिक्स क्या है कि एमएल से ही पूछा जाएगा.
स्कोप क्या फिक्स है? स्कोप फिक्स है कि एमएल से ही पूछा जाएगा, और बाउंड्री क्या फिक्स है कि जितना पढ़ाया गया उसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, और ये सिंगल टेबल हो गया। उसी तरह से हमारे पास एक दूसरा सब्जेक्ट है, मान लो लेट से सोआ ही है, तो स्कोप क्या है कि सोआ से ही पूछा जाएगा, और दूसरा क्या है कि बाउंड्री की जितना पढ़ाया गया उसी में से पूछा जाएगा। उसी तरह से 3 सब्जेक्ट है। लेकिन मान लो तुम इंटरव्यू में बैठोगे और ये तीनों सब्जेक्ट डाल दिए अपने रेज्यूमे में, तीनों सब्जेक्ट को अपने रेज्यूमे में डाल दिए, तो उस केस में क्या होगा कि स्कोप तुम्हारा यही रहेगा, लेकिन फंक्शनल बाउंड्री बदल जाएगा। वो कुछ भी पूछेगा, जरूरी नहीं कि वो तुम पढ़ा हो। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? यस सर। Yes, sir. So that is the meaning of functional scope and functional boundary. तो स्कोप क्या रहेगा कि ये जो इंटरव्यूअर है तुमसे अगर रिज्यूमे में डाला हुआ है कि हाँ सोआ पढ़े हुए हैं, एमएल पढ़े हुए हैं, और मान लो क्या था सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ये तीनों सब्जेक्ट तुम डाल दिए हो रिज्यूमे में, तो यही सब्जेक्ट रहेगा, फंक्शनल स्कोप वही रहेगा, तीनों सब्जेक्ट, लेकिन बाउंड्रीज बदल जाएगा। वो नहीं पूछेगा कि तुम ये चीज पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, वो पूछेगा। ठीक है, उसको नहीं मतलब है कि तुम डीप लर्निंग में जो एल्गोरिथम सब है वो पढ़े या नहीं पढ़े, वो एमएल से है, एमएल का है तो वो पूछेगा। ठीक है, मतलब ये है, ये मतलब बाउंड्री फिक्स नहीं होता है। यानी इस तीनों को मैनेज करना, मतलब तीनों अलग अलग टेबल्स को मैनेज करना, ये जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज है वो यूटिलिटी सर्विस में आएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि ये तीनों को कॉम्पोजिशन में यूज कर रहा है यूटिलिटी सर्विस को। एवरीवन? यस सर। तो एक चीज ये हो गया, और एक ये हो गया। कभी कभी देख रहे होगे कुछ कुछ आर्किटेक्चर जो हमारे पास होता है, उसमें क्या होता है, मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कोई आर्किटेक्चर होता है, मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर तुम कोई भी ले लो, सपोज आई एम टेकिंग आर्किटेक्चर, कोई एक टूल ले लेते हैं, मान लो उसको क्या कहते हैं, काफका का नाम सुना है कोई? छोड़ो। Franz Kafka. हाँ, Franz Kafka. नहीं नहीं नहीं, ये टूल है। ओके, सो सपोज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, consider a distributed system. So suppose a distributed in distributed system, a single machine, a single, you can say, computer will be acting as a master, and those computers which are connected to these masters are acting as a slaves. तो इसमें क्या होगा, ये भी एक कंप्यूटर है, ये भी एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये भी स्लेव्स है और ये भी एक स्लेव्स है। ठीक है, तो इस तीनों को मैनेज करना, किसको क्या टास्क देना है, मान लो तुम इस पर डिवाइड एंड कॉन्क्योर यूज कर रहे हो, तो डिवाइड एंड कॉन्क्योर में एक हिस्सा इधर जाएगा, n/3 पार्ट इधर जाएगा, n/3 पार्ट इधर जाएगा, n/3 पार्ट इधर जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये तुमको डिसाइड करना कि कौन सा पार्ट, मान लो इसमें n/2 ही जा रहा हो, इसमें n/4 जा रहा हो, इसमें n/4 जा रहा हो, ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये तो यहाँ पे कोई एक यूटिलिटी सर्विस होगा, यूटिलिटी सर्विस। So that utility service must be deciding which part of your problem residing in this slave 1 and then slave 2 and then slave 3. So मैनेजमेंट वाला जो काम है वो यूटिलिटी सर्विस के अंदर में आता है, वो कंपोज करके मैनेज करता है, और ये रखता है कहाँ पे, ये जस्ट ऊपर लेयर पे होता है, जस्ट इसके ऊपर वाले लेयर पे। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट इसका यही है। तो अगर इसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो सेम चीज तुमको देखने को मिलेगा। वेयर एज इंडिविजुअल सर्विसेज ग्रुप रिलेटेड सर्विस कैपेबिलिटी, द सर्विसेज फंक्शनल बाउंड्री कैन वेरी ड्रामेटिकली। तो वही सब चीजें जो मैंने बताया अभी जस्ट। ओके, सो इन द लास्ट दैट टाइम शीट सबमिशन प्रोसेस वी हैव दैट HR सिस्टम। HR सिस्टम हमारे पास एक था, ठीक है, जो क्या करता था, टाइम शीट डॉक्यूमेंट को ला करके देता था। ठीक है, so in this timesheet document you can see over here, इस एग्जांपल को देखो 2 मिनट पहले, मैं एंड पॉइंट URL को चेक करो पहले, 1 मिनट, टेक 1 मिनट एंड गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट
HR system endpoint URL. HR सिस्टम को कोई बता सकता है HR सिस्टम को क्यों रखा गया है यूटिलिटी सर्विस में? कोई बता सकता है? Because HR system has an access to time sheets, employee data, employee history, and the payroll table. Getting my point? Yes, sir. So utility service का मतलब ही होता है कि it has access to different sets of table or different sets of services. So you can see over here this gate, and then after gate we have a time sheet, then employee, then employee history, then payroll. So these are the different sets of table. You can see in the previous example here we have invoice, 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 because the entity service is invoice itself. Right? Guys, please mute yourself. Okay, so you can see over in this example, इसको मिटा देता हूं मैं. So you can see in this example invoice entity service, you can see over here it is written invoice, 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 right? Because this invoice entity services has an access to only this table, right? But in case of utility services, we have already discussed, it can have access to different sets of tables, right, for the management purpose. So कुछ भी चीज 2 3 4 रिलेटेड टेबल को जोड़ के कुछ निकाल रहा हो, या चारों से कुछ मैनेजमेंट करने के लिए उधार ले रहा हो, ठीक है, यू कैन से, ठीक है, तो उस केस में देखो HR सिस्टम क्या होता है, ये जो भी डिपार्टमेंट होता है सारे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करता रहता है, ठीक है, फॉर द मैनेजमेंट पर्पस और कोई भी कारण से, ठीक है. तो यू कैन सी ओवर हियर इट इज टॉकिंग टू द टाइम शीट टेबल, employee table, employee history table, and the payroll table, right? That is why we kept this HR system into the utility services. Getting my point, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now coming to the microservice design. So in the microservices design, see, जैसे हमारे पास we have slightly difference between the utility service and entity services. We have seen both are agnostic and reusable in nature, but they had some differences between them. The differences was entity service is interacting with a single table, or utility service may interact with a list of tables, right? Different sets of tables, right? So similarly, we have certain similarities between this microservice and this entity service, and we have certain differences between this microservice and entity service. Let's see what is the similarities and what is the differences. So in case of entity services, whatever the operations it has, those operations are agnostic in nature, because we have already seen the entity services are reusable or agnostic in nature, right? But in case of microservice design, the operations it has are non-agnostic in nature. So whatever the non-agnostic steps in the service-oriented analysis phase we have got, you can put them into a single microservice. Getting my point? So ऐसा कौन है जो non-agnostic भी हो के क्या कहते हैं प्रोसेस स्पेसिफिक नहीं है? मतलब रुक लो एक मिनट, क्या कहते हैं उसको, हाँ, नॉन एग्नोस्टिक तो है लेकिन प्रोसेस स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, लेकिन नॉन एग्नोस्टिक है. मतलब एक मिनट रुको, समझाने की कोशिश कर रहे हैं. एक एग्जांपल लो, मान लो कोई तुम
कोई ऐसा चीज तुम ऐसा स्टोर खोल लेते हो जिसमें तुम ऐसा सामान रखते हो, जो सामान रखने का मतलब क्या है कि कोई तुम इसको बेचना चाहते हो, यही ना? एवरीवन? यस सर। यस सर। तो सामान रखने का मतलब इसको बेचना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, एग्नोस्टिक इन नेचर होगा तब ना तुम सब लेगा इसको। मान लो ये ग्रोसरी स्टोर है, तो ग्रोसरी स्टोर में जो भी आइटम्स होगा वो सबके लिए है, यानी एग्नोस्टिक है, ये कोई भी ले सकता है, ये जो स्टोर वाला है वो भी यूज करेगा, एंड इट कैन बी यूज बाय डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल्स, राइट? तो इसको कह सकते हैं कि एग्नोस्टिक है, ठीक है? एग्नोस्टिक है मतलब एनोलॉजी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन मान लो तुम ऐसा कुछ दुकान खोल लेते हो, तो दुकान खोलने का पर्पस ही होता है कि तुम उसको बेचना चाहते हो, तो तुम ऐसा कुछ सामान रख लेते हो जो तुम्हारे ही काम आ रहा है, दूसरा कोई ले ही नहीं रहा है। तो हमारा पर्पस क्या था? हमारा पर्पस तो था इसको एग्नोस्टिक बनाने का, लेकिन इसको कोई ले ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ सामान। समझने की कोशिश कर रहे हो एनालॉजी को? एवरीवन? हेलो? सर तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे ये प्रोसेस स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन इसको यूज करने वाला कोई नहीं है। प्रोसेस स्पेसिफिक में क्या होता है, सिर्फ वो प्रोसेस ही यूज कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई बिजनेस प्रोसेस नहीं है जो इसको यूज कर सके। समझ रहे हो? हम लोग एग्नोस्टिक किसको कहते हैं, समझो, एक मिनट फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। एग्नोस्टिक क्या मतलब क्या होता है कि वी आर डिजाइनिंग समथिंग विच गेट्स रीयूज्ड बाय डिफरेंट सेट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, राइट? यस सर। तो मान लो ये एग्नोस्टिक है, ये जो हम सर्विस बनाए, ये सॉरी स्टेप जो है ये एग्नोस्टिक है, मतलब एक क्या कहते हैं, माइक्रो सर्विस है, अभी इसका नाम कुछ नहीं देते हैं, एक सर्विस है, ठीक है? तो ये एग्नोस्टिक है नेचर में। तो ये क्या होगा, इट कैन बी यूज बाय बिजनेस प्रोसेस 1, बिजनेस प्रोसेस 2, बिजनेस प्रोसेस 3, ठीक है? तो हम लोग इसको बनाए हैं ना, क्योंकि हमको पता है कि ये बिजनेस प्रोसेस में भी यूज होने वाला है, ये भी बिजनेस हो रहा है, इसलिए तो कहते हैं मार्केट का डिमांड देखो। मार्केट का डिमांड देखने का मतलब क्या होता है कि यू चेक व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस गोइंग टू यूज दिस सर्विस, यही ना होता है मार्केट का डिमांड देखना। अरे स्टोर से रिलेट करो, ओके। तो सिमिलरली ये प्रोसेस स्पेसिफिक था, लेकिन ये एग्नोस्टिक होने के कारण क्या हो गया, इसको बिजनेस प्रोसेस 1, 2 और 3 भी यूज कर सकता है। एक मजबूरी है हमारा एक सर्विस बनाने का, इस तरह से सर्विस बना दिए, मजबूरी था हमारा, मजबूरी है बना लिए, ओके। लेकिन ये जो सर्विस है, ये जो सर्विस है ना, ये बनने के बाद इसको कोई बिजनेस प्रोसेस यूज करने वाला नहीं है। मतलब ऐसा बन गया ना, सर्विस तो बन गया लेकिन इसको कोई यूज करने वाला नहीं है। ये बिजनेस प्रोसेस ये स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन इसको कोई यूज भी नहीं कर रहा है, ठीक है? यस सर। ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं, इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं ना कि क्या कह सकते हैं इसको, ये प्रोसेस स्पेसिफिक नहीं है, सॉरी नॉन एग्नोस्टिक नहीं होते हुए भी, क्या बोल सकते हैं इसको, एग्नोस्टिक नहीं होते, मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? इट इज एग्नोस्टिक बट इट इज नॉट एग्नोस्टिक यूज्ड भी और बाय। बाकी बिजनेस प्रोसेस भी यूज नहीं कर पा रहे। हाँ, इस तरह से, ठीक है। तो उस केस में that those kind of steps must reside in micro services, so you can go through and check this statement, जो बोला हूं वही लिखा हुआ है, ठीक है? ओके। so now coming to this point, yeah, so conform authorization, that kind of example is conform authorization। तो हम लोग देखें conform authorization मतलब क्या होता है कि हम लोग को चेक करना है कि उसको ऑथराइज किया गया है या नहीं, मतलब एक एंटिटी को, किसको, एक एम्प्लॉय को, जो टेक्नीशियन है उसको ऑथराइज किया गया है नहीं कि वो क्या एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर सके। याद है एग्जांपल ये?
एवरीवन? Yes, sir. तो ये एक सर्विस था जिसको चेक करना पड़ रहा था. We had a service that is confirm authorization in which we have a confirm service capability candidate which simply states go and check whether the particular technician has authorization to overtime or not, right? So that kind of service is this one, right? So ये जो सर्विस है ये क्या हुआ, ये बिजनेस प्रोसेस भी तो है लेकिन इसको कोई यूज करने वाला नहीं है. एग्नोस्टिक तो है लेकिन इसको कोई यूज नहीं कर रहा है, तो इनडायरेक्टली ये नॉन एग्नोस्टिक नहीं हो गया. मान लो तुम्हें दूसरे बिजनेस प्रोसेस में जरूरत पड़ता है कल को कि चेक करना कि ऑथराइजेशन है या नहीं, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ रहा है ऑथराइजेशन है या नहीं. कहीं पर भी कोई भी बिजनेस प्रोसेस में ऑथराइजेशन चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है. ठीक है, हमको सिर्फ टाइम शीट सबमिशन प्रोसेस में ही ये चेक करने की जरूरत पड़ता है कि ऑथराइजेशन टेक्नीशियन को ऑथराइजेशन मिला है या नहीं. ठीक है, इसीलिए ये एग्नोस्टिक होते हुए भी कोई इसको बिजनेस प्रोसेस यूज नहीं कर पा रहा है. दैट इज व्हाई इट बिकेम नॉन एग्नोस्टिक इन नेचर. So that kind of services, that kind of steps must reside in microservices. तो microservice समझ में आया क्या है? Okay. Now coming to the last section, that task service design. तो हम लोगों ने देखे हैं, हम लोग क्या देखे हैं? We have already seen this task service. So in the case of task services simply represents the business process, the whole business process. Suppose you have a business process like order creation. In the previous chapter we had a business process, time sheet submission process. So let's say we have a business process BP1, time sheet submission process. So for whole business process we had a single task service. ये होना ही है. ठीक है, single task service, and it must have a single operation, that is a start. Similarly for this business process, control award, right? This is a business process. इसके पास भी एक स्टार्ट होगा. मान लो एक और है हमारे पास, एक ऑर्डर क्रिएशन. एक ऑर्डर जब तुम प्लेस करते हो, when you places a certain order, in that case it is also a business process, right? So in that case we also had a start service. होगा ना, तब ना ये ट्रिगर, ये इसको क्लिक करोगे बस प्रोसेस चालू हो जाएगा. ऑर्डर प्लेस करते हो, क्लिक करते हो सबमिट, तो प्रोसेस चालू हो जाता है. ठीक है, ऐसा होता है ना. ओके, सो इसमें क्या क्या गया है? समवन हैज एनी डाउट्स? नो. सो इन केस ऑफ in case of this REST API designing, this start service capability candidate operation, in case of whatever the operation it has, in case of service oriented design it is known as service capability candidate. तो नाम चेंज है बस, और कुछ है नहीं. तो इसको किससे कहा जाएगा? इसको पोस्ट ऑपरेशन दिया जाएगा. समझ रहे हो? post/start. getting my point everyone? Similarly, the endpoint for this start will be post start. Similarly, post start. तो एटलीस्ट एक ऑपरेशन तो होना ही चाहिए. फॉर अ सिंगल बिजनेस प्रोसेस that task service will consist at least one single operation, that will be start, right? इसके अलावा beside this we can have more operations. What kind of operation we can have? We can have delete, we can have a stop. What is the meaning of delete or stop? Suppose someone, let's say कोई ऑर्डर स्टार्ट कर दिया, एक घंटे बाद उसको ऑर्डर को कैंसिल करना है. अब वो क्या करे? स्टार्ट जो हो चुका वो रुकने के लिए कोई ऑपरेशन ही नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. तो तुम्हारे Yes, पास sir. कोई बटन तो होना चाहिए ना जिससे तुम कैंसिल कर सको ऑर्डर, या स्टेटस देख सको. स्टेटस देखना है हमारे पास, स्टेटस देखना है कि ऑर्डर हमारा कहां तक पहुंचा. सपोज यू आर फिलिंग अप अ फॉर्म,
CCMT का फिल किए होगे तो तुम लोग अपना देखे होगे ना स्टेटस की कहाँ तक पहुंचा मेरा एप्लीकेशन। हाँ, स्टेज 1 में चल रहा है, राउंड 2 चल रहा है, राउंड 3 चल रहा है। तो ये इट इज ए बिजनेस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स। ये CCMT वाला किसी को दिया है मैंने? किसको दिया है ये? अरे कोई बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट खोला भी नहीं है क्या अभी? ये CCMT वाला डॉक्यूमेंट किसी को दिया था मैंने, ओके। तो CCMT इज बिजनेस प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस को यूज करता है। तो ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या राउंड 4 चलता है। तो सपोज एट एनी स्टेज यू वांट टू stop certain process, right? Or you want to see the status. So different types of operation must be there for a business process. So what is that? A delete। मान लो हमको रिकॉर्ड ही हटाना है कि हम नहीं चाहते हैं मेरा क्या कहते हैं ये CCMT का जो प्रोसेस है वो स्टॉप करना चाहते हैं, स्टेटस देखना चाहते हैं कि किस राउंड पर पहुंच गया। तो इस दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी रिसाइड इन अ टास्क सर्विसेज, राइट? तो ये सब जो ऑपरेशन हम लोग जोड़ रहे हैं, ये ऑपरेशन किस समय जोड़ते हैं? एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग, बिकॉज इन द प्रीवियस चैप्टर एट द एनालिसिस स्टेज वी डिडंट केयर अबाउट द स्टॉपिंग, चेकिंग द स्टेटस और दैट क्या था, checking the status, stopping or deleting, both are same, right? So we didn't care in the previous chapter, but in this chapter since we are designing, and from here now we are going to start the hard coding phase, right? So हमको जो भी ऑपरेशन एक्स्ट्रा इंक्लूड करना है, दिस इज द लास्ट टाइम, दिस इज द फाइनल टाइम यू कैन अटैच those operation in your services, right? So we are modifying our, yeah, so you can see over here 2 new services are being added over here, that get or delete, and depending on the task and this task ID, you should provide the ID, or your task will be deleted, or your task will be, you will check the status of your task. Getting my point, everyone? Yes, sir. So because we are doing such things, because all of these business processes are long running business processes, राइट? ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑर्डर अभी ऑर्डर प्लेस करते हो तो 7 दिन का टाइम लेता है, 10 दिन का टाइम लेता है, देन योर ऑर्डर फाइनली गेट्स एग्जीक्यूटेड। वो 7 दिन तक प्रोसेस होते रहता है, ठीक है? तो वो लगातार कंप्यूटर पे नहीं चल रहा है, वो स्टेज में पास हो रहा है, एक स्टेज पे दूसरे स्टेज पे गया, ऑर्डर अभी इनिशिएट हो गया, यहाँ पे डिलीवरी अप्रोच, मतलब जो भी दिखाते रहता है तुम्हारा एक टाइमलाइन पे, एक टाइमलाइन दिखाते रहता है ना कि इस समय पे ये हो गया, इस समय पे ये हो गया, इस समय पे ये हो गया। सो उस तरीके से हमारा बिजनेस प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, धीरे धीरे। ओके, नाउ कमिंग टू आवर MUA एग्जाम्पल। So it is hardly going to take 10 minutes more, and then this chapter will be going to finish by today. And after this page number 13, this REST service design guidelines we are going to see in our lab. So don't worry, ये इसके बाद 13 के बाद जो 44 तक पेज है वो हम लोग लैब वाला सेशन में देखेंगे। इसको यहाँ पे बताना, इसको Oracle सोर्स पर परफॉर्म करेंगे, that will be beneficial, more beneficial. So we are going to skip this part for our lab, and अब 2-3 पेज बचा हुआ है, वो आज ही खत्म हो जाएगा। ओके, so yeah. So now the second business process, till now we have seen the example of इसका एग्जांपल हम लोग देख लिए थे टाइमशीट बिजनेस प्रोसेस का, राइट? So now we are going to see the confer a student award service task. So since it is a task, so similarly we have a different set of operation. What kind of operation we have? The start, you can see over here, this post task, एक तो होगा ही ना, ये स्टार्ट को ही प्रेजेंट कर रहा है एवरीवन, सिमिलर टू प्रीवियस एग्जांपल। everyone
हेलो, जैसा सुनाई दे रहा है। Yes, sir. Yes, sir. सुनाई दे रहा है, लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। दो एक चीज, दोनों में से ट्रू है। ओके, सो यहाँ तक समझ में आया सबको ना? अभी क्या ज्यादा फास्ट तो नहीं गया, 8 पेज गया एक घंटा में। हेलो एवरीवन, अभी तक Yes, समझ sir. में आ गया सबको? ओके, सो similar to previous timesheet submission process, tax service, we are talking about the tax service now. So we have already seen this every tax service. You can see over here in this example, every tax service, either it is timesheet submission process, control award process, or order creation process, each and every tax must have at least single service, सिंगल ऑपरेशन. व्हाट इज दैट? स्टार्ट. और उसके बाद तुमको स्टेटस चेक करने के लिए डालना है, यू कैन पुट इट देयर, और डिलीट करने के लिए डालना है, यू कैन आल्सो पुट इट देयर, राइट? तो ये सब ये तुम्हारे पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, यू कैन पुट आइदर पुट और नॉट, राइट? सो हम लोगों ने देखा है कि ये जो स्टार्ट है ऑलवेज इन द रेस्ट एपीआई डिजाइनिंग, इट इज ऑलवेज द, इसका जो एंड पॉइंट यूआरएल होगा कि ये कैसा होगा, पोस्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है, पोस्ट से. तो सिमिलरली यू कैन सी ओवर हियर दिस पोस्ट एंड टास्क, इट इज रेफरिंग टू दिस स्टार्ट सर्विस, राइट? एंड सिमिलरली वी हैव डिलीट टास्क एंड गेट टास्क. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेट? वी ऑलरेडी नो, इट सिंपली रिटर्न्स यू द स्टेटस, कहां तक पहुंचा, सेकंड राउंड चल रहा है या थर्ड राउंड चल रहा है या फोर्थ राउंड चल रहा है, ऑर्डर कहां तक पहुंचा, क्या वो पटना में है, क्या वो दिल्ली में है, क्या वो अभी बेंगलुरु में है, ठीक है? डिलीट द टास्क, हमको ऑर्डर कैंसिल करना है. तो फॉर दोज काइंड ऑफ सिनेरियोज we need these operations, right, to check the status either or to delete the whole business process for you, right? So these operations are needed for quality of service, right? ऐसा नहीं कि ऑर्डर प्लेस कर दिया उसका तुम कैंसिल नहीं कर सकते हो. तो ये सब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस को बढ़ाने के लिए. तो जो भी मैंने बोला ये लिखा हुआ है इधर, you can go through this. The capability you can see over here. This capability was added to allow the executing instance of a conference student about business process to be terminated. So to terminate purpose, we are using this delete. And to get, what is the meaning of get over here? To see the state of an executing instance. तुम कहाँ पे हो? Either you are at round 1, round 2, or round 3 in CCMT business process, or in case of order creation, where is your exact location of your package, right? So this kind of services you need, right? So for those scenarios we require extra sets of functionalities, extra sets of operations. So let's see the entity service. यहाँ गलती लिख दिया है, यहाँ entity service होगा, entity service contract. So similarly ये सर्विस हमारे पास था इन द प्रीवियस चैप्टर. वी हैव ऑलरेडी सीन द गेट इवेंट. गेट हम लोग को चाहिए इवेंट. व्हाई इट इज इवेंट? बिकॉज वी आर यूजिंग दिस इवेंट एंटिटी सर्विस. सो दैट इज व्हाई इट इवेंट इज रिटन ओवर हियर. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट विच इवेंट? दिस आईडी रेफर्स टू दैट event 1, event 2, or event 3. So depending on the event ID, it is going to return you that event details, right? And MUU architects, मतलब Midwest University Association architects had decided to put some extra functionalities for the event, which is not related to this business process. जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग business process. See, in the previous chapter we have seen the whole business process, and we have analyzed what are the at least operations required for each services, right? In the previous chapter we have analyzed and find out what are the different sets of, what are the least operations required for overall business process to run, right? और इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज इसके बाद क्या होगा, ये हम लोग सीधा डिजाइनिंग पे, we are going to jump on directly on the designing part, coding part, because we are here designing. तो हम लोग इसको जितना बेहतर बना सकते हैं बनाएंगे.
ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए। तो हम एमयू आर्किटेक्ट्स ने क्या सोचा, दे आर प्लान्ड टू ऐड ऑन extra event, extra functionality based on the events. Suppose in the student student award control business process, इसमें हमारा स्टूडेंट से रिलेटेड स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट ऑपरेशन ही था, याद है एवरीवन? Yes, sir. स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट ऑपरेशन ही था। सो तुम इसको बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, एटलीस्ट स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट ऑपरेशन होना चाहिए, उसके अलावा तुमको जो डालना है तुम डाल सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे क्वालिटी ऑफ सर्विस को इनहांस करेगा, ठीक है, द प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इनहांस करेगा। सो दैट इज व्हाई दे हैव डिसाइडेड, द एमयू आर्किटेक्ट डिसाइडेड टू ऐड ऑन सम एक्स्ट्रा ऑपरेशंस व्हिच इज गेट इवेंट बेस्ड ऑन द कैलेंडर। अगर तुम्हें चेक करना है कि वेदर, हमें अभी तक क्या कर रहे थे, इवेंट को चेक कर रहे थे बेस्ड ऑन आईडी। सपोज यू हैव डू नॉट to check, you want to check, so based on the dates, based on the calendar range, based on the dates range, you can check which events are going to be organized, right? And based on the description, you can also get the details of the events, right? So these types of operation enhances your quality of the project, right? Similarly, we have award entities, award services, it is also an entity, and yeah, in case of award, they have added some extra rules, they have added some extra business rules. जो मैंने मार्क किया है वो सब इंपॉर्टेंट लाइन है और वही सब मैं बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं नया कुछ बोल रहा हूं। ओके, सो इन द अवार्ड सेक्शन दिस वाज मैंडेटरी, ये हम लोगों को लास्ट चैप्टर से मिला है, ये तो होना ही चाहिए। देन आफ्टर दैट दे हैव एडेड, एमयू आर्किटेक्ट्स हैव एडेड दीज ऑपरेशंस। Yeah, someone has something to say? Okay. So ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर से निकाल के लाए हैं एनालिसिस फेज से कि एटलीस्ट अवार्ड सेक्शन मस्ट हैव गेट अवार्ड बेस्ड ऑन आईडी। लेकिन सपोज you want to get details of award, the award based on some rules, then they have added these control rules, and you can see over here what is written over here. Yeah, with the rules being specific to each award type, they determine that each should be the award entity service that applies to the bulk of these rules. Some generic checks do need to apply, so the logic is divided between the conferred award tax service and the award entity services. So it is simply saying, so इसमें क्या था, एक मार्क लाइन नहीं किया मैं शायद, सेकेंड, to avoid tax details. Let me check. Get award ID, get control rules, post. Yeah. See, these two operations, post award control and this put award control. So, have you heard of this media types? Anyone? Media types in HTML or any JavaScript languages. Media types. कोई तो सुना होगा। Anyone? अरे जब HTTP हेडर को तुम राइट क्लिक करके जब उसको ओपन करो, जब उसमें देखते हो कि कंटेंट क्या कहते हैं, कंटेंट हेड कुछ लिखा रहता है, उसमें एक्सेप्ट एक होता है, एक्सेप्ट हेडर में जाओगे तो तुम्हें नजर आएगा व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर एक्सेप्टिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ
कंटेंट दे आर रिलीजिंग। तो तुम लोग देखोगे एप्लीकेशन स्लैश XML HTML लिखा होगा, एप्लीकेशन स्लैश टेक्स्ट लिखा होगा, एप्लीकेशन स्लैश PDF लिखा होगा। ठीक है, सपोज यू आर डाउनलोडिंग सम PDF फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट, अगर उसको राइट क्लिक करोगे तो उसका कंटेंट देखोगे ना, तो उसमें लिखा रहेगा एप्लीकेशन स्लैश PDF। सो इट्स सिंपली सेइंग दे आर प्रोवाइडिंग यू इन द फॉर्म ऑफ PDF, राइट। तुम्हें कंटेंट सेट करना पड़ता है और समटाइम्स इट गेट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड। सो उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड दे आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, दे आर यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। So they have tried to use this application slash JavaScript media type, right? And in case of human readable output, because it is a code, right? It is a code. You can read the JavaScript code. मतलब end user इसको read नहीं कर सकता है. As a programmer, you can read. So for the human readable output, they are requesting for the text HTML, because the HTML got rendered as a simple text, as a plain text over the browser, right? So for these two purposes, they are using the same word control. Right, so you can go through this text later on, or it is क्या कह सकते हैं, ये उनके अवार्ड कंट्रोल बिजनेस प्रोसेस के स्पेसिफिक है, और मतलब उसके स्पेसिफिक नहीं है, एक्स्ट्रा और एड ऑन किया है। इसके बिजनेस प्रोसेस के स्पेसिफिक सिर्फ ये था, ठीक है। अब उनका एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इट्स डिपेंड्स अपॉन देम, राइट। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो उनके जितना मन करेगा वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाई दे हैव इंक्लूडेड सच काइंड ऑफ ऑपरेशंस, राइट। सो नाउ in the last chapter we have seen they have added a student entity services. Let me explain. In the last chapter, service oriented analysis chapter, we have seen they have added a student services, and they have added operation as a student transcript ये था ना, right everyone? हेलो, यस सर। कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। यस सर। ओके, लास्ट चैप्टर ही बचा हुआ है 15th में भी, एक लेक्चर में शायद वो भी हो जाए। इनडायरेक्टली सेकेंड लास्ट लेक्चर हो रहा है। So we have student services, student entity services, right? So in the previous chapter we have already discussed this is highly reusable in nature, because अगर तुम student if you have a student entity services, this entity service may be used by BP1 business process 1, BP2, BP3 एंड BP4, मतलब जितना भी बिजनेस प्रोसेस होगा ना, स्टूडेंट को तो यूज करेगा ही, बिकॉज दे आर डेवलपिंग एप्लीकेशंस फॉर दी, इसके लिए स्टूडेंट और स्टाफ्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मेन यूजर है, ये तो करेंगे ही, ठीक है। रीयूजेबिलिटी का मेन मतलब क्या होता है कि वो कितने बिजनेस प्रोसेस में यूज हो रहा है। अगर ये स्टूडेंट मान लो 3 बिजनेस प्रोसेस में यूज हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम अगर एक यूनिट से नापे तो इसका मान लेते हैं कि 3 यूनिट ऑफ रीयूजेबिलिटी है। अगर मान लो एक सर्विस है, लेट्स से क्या था हमारे पास इससे पहले, अवार्ड, तो अवार्ड जो है, अवार्ड सर्विस है, इसको मान लो बीपी बिजनेस प्रोसेस एक ही एक्सेस कर रहा है और BP2 एक्सेस कर रहा है मात्र, तो इसका रीयूजेबिलिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 यूनिट ऑफ रीयूजेबिलिटी, राइट। तो ये हम लोग क्या कहेंगे कि इससे कम रीयूजेबल है। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? So
सो स्टूडेंट जो सर्विस है हमारा हाईली रियूजेबल है. सो इन द प्रीवियस चैप्टर दे हैव डिसाइडेड एट द एनालिसिस स्टेज दे हैव डिसाइडेड टू यूज दिस वे. को उन लोग क्या किए कि स्टूडेंट एंटिटी सर्विस बनाए और उसके अंदर एक स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट ऑपरेशन बना दिए. ठीक है, तो इस चैप्टर में दे हैव डिसाइडेड अदर वे. अब ये इस चैप्टर में उन लोग क्या किए हैं कि ये स्टूडेंट कुछ ज्यादा रीयूजेबल हो रहा है और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फ्यूचर में, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज्यादा बिजनेस प्रोसेस आर गोइंग टू यूज इट, राइट. सो दे हैव डिसाइडेड व्हाई नॉट टू क्रिएट अ एंटिटी ऑफ स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट. इसका रीयूजेबिलिटी को घटाने के लिए क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगा ना रीयूजेबिलिटी से. कैसे बढ़ेगा? मान लो ये हमारे पास एक सर्विस है स्टूडेंट, तो ये भी सर्विस बिजनेस प्रोसेस का ये भी कनेक्टेड होगा, ये भी कनेक्टेड होगा, ये भी इससे कनेक्टेड होगा, ये भी इससे कनेक्टेड होगा, ये भी इससे कनेक्टेड होगा. जितना बिजनेस प्रोसेस होगा सब इससे कनेक्टेड हो जाएगा. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा. ठीक है, इस मतलब रीयूजेबिलिटी चाहिए लेकिन इतना नहीं चाहिए कि हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाए. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये क्या किया है MU आर्किटेक्ट्स, they what they have done, they have created a entity based on their operation, that is student transcript. You can see over here, and yeah, student transcript. And what student transcript में क्या था, हम लोग को स्टूडेंट का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और यू नीड टू अपडेट, यही दो ऑपरेशन था. तो दे हैव पुटेड दिस वे. तो यही इसमें पूरा यहाँ पे यहाँ तक लिखा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं लिखा है. ओके, सो द नाउ लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज नोटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द यूटिलिटी. सो द notification service and document service process similar to human readable data. Notification service sent via email. Notifications can be sent via email, or it can be encoded in two forms, either human readable forms, encoded as a human readable forms, or single form, that is human readable format, that is HTML or PDF, right. So you can see over here this notification has post, and this notification and this document has post, and this printer operation, right. So this notification, second, yeah, the description about these two diagrams are written over here. The sample student John Smith from application form used as input for the conferred student award task services has nominated his contract preferences with hyperlink this. अगर किसी ने मेल सर्विस यूज किया होगा इन योर कोडिंग सेक्शन, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस वे ऑफ राइटिंग द मेल आईडी. किसी ने अगर मेल सर्विस यूज किया होगा कोई प्रोजेक्ट में तो उनको पता होगा कि इस तरह से यूज करते हैं. ठीक है, द रेस्ट इन्वेंट्री स्टैंडर्ड फॉर हैंडलिंग सच एड्रेसेस टू ट्रांसफॉर्म URL इनटू HTTP नोटिफिकेशन MUD, जो भी इनका वेबसाइट है, सेंडर टू इतना और फ्रॉम इतना. ठीक है, दे आर यूजिंग द पोस्ट ऑपरेशन. सो ये उनका इसको यूज करने का तरीका बहुत सारा है. ये डिपेंड करता है कि तुम लोग किसका सर्विस यूज कर रहे हो, क्योंकि यूटिलिटी सर्विसेज आर जनरली बाय द थर्ड पार्टी. अगर कोई तुम ईमेल भेजना चाहते हो तो तुम खुद से नहीं भेज सकते हो. तुम प्रिंट करना चाहते हो, यू नीड टू यूज द ड्राइवर सिंटेक्सेस. इफ यू आर यूजिंग इफ यू वांट टू सेंड द ईमेल, देन यू नीड टू कॉल द थर्ड पार्टी ईमेल प्रोवाइडर्स. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें लिखना पड़ेगा. ये इनके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, जो वो लोग जो सर्विस यूज कर रहे होंगे उनके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है. सो दैट इज द ऑल अबाउट दिस चैप्टर फ्रॉम द REST service design guidelines we are going to see in our lab session. And yeah, it is done. This chapter is over, and from Monday we are going to see chapter number 15, and please go through this chapter again and again so that you can understand it very well. जो भी लिखा हुआ है मैंने बता दिया है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कोई लाइन छोड़ दिया है. जो भी लिखा हुआ है इस बुक में मैंने एक एक लाइन डिस्कस कर दिया है. ओके.